morning students. Myself Rajiv Verma is going to continue the topics, and our today's topic is equations of motion by graphical method. To obtain the equations of motion by graphical method, consider an object. Suppose this is a car and this object is initially moving with velocity u and accelerate with acceleration a. After some time, suppose the time become t, the object reaches from its initial position a to the final position b, where it acquires a velocity v and the separation from a to b becomes s. Now we are considering this situation. This situation can be obtained on the graph also. If we are having a velocity trine graph, means velocity on the y-axis and time on x-axis, then we can show this situation here. Means initially consider u be the velocity of the object, and after a particular time t, this point is suppose e, and it may be d point, and the gap, the time taken from O to B is suppose t. The velocity acquired by the object is v. यानी हमने ये कंसीडर करा कि इनिशियली एक ऑब्जेक्ट u वेलोसिटी से चल रहा था, t टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी v हो जाती है. तो बाय जॉइनिंग these two points we can got the graph vt graph of this situation. Now we can name them. Suppose this point is a, this one is b, this point is c, d हमने पहले से मेंशन कर दिया है, and this may be suppose e. Now for the equations of motion, first of all I want to obtain the velocity time relation. Velocity time relation. To obtain the velocity time relation, by the definition of acceleration, we know that a may be written as change in velocity divided by the time taken. This expression, this formula, we know by the definition of the acceleration. Acceleration is change in the velocity divided by the time taken. Then if we are correlating this situation, this relation with the graph, then BC is the region where the velocity change taking place in y-axis, that is from u to v. Yani BC is the region which explain in the graph the change in the velocity, while the OD is the region which represents the time taken. So BC may be written as BD minus DC. Okay, divided by OD. Now this relation may also be written as BD. What is BD? Is the final velocity v minus up to C point, it is initial velocity u, divided by OD is the time taken on x-axis is t. By cross multiplication we can write v minus u is equal to at. This is our first equation. Moreover, we can write it as v is equal to u plus at also. This equation is known as velocity time relation, or the first equation, first kinematic equation of
motion. Now coming to the second equation, and the second equation is, our second equation is position time relation. Second equation is position time relation. Now coming to the position time relation. To find the position time relation, we will calculate the distance covered by the object during the change. यानी distance covered by the object in टाइम t. टाइम में डिस्टेंस कवर्ड कितनी हमने कंसीडर करी थी s, बट फ्रॉम द ग्राफ अगर हमें डिस्टेंस कवर्ड कैलकुलेट करनी है तो इट विल बी इक्वल टू द एरिया ऑफ एरिया अंडर एरिया अंडर एबी के अंडर एरिया जो होगा वो डिस्टेंस कवर को रिप्रेजेंट करेगा. अब AB के अंडर जो एरिया एग्जिस्ट कर रहा है, ये जो रीजन एग्जिस्ट कर रहा है, ये एक ज्योमेट्रिकल फिगर बन रही है और जो है ट्रेपेजियम. तो इट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABDO, इसका एरिया. अब इस ट्रेपेजियम का एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ द ट्रायंगल. तो हम इसे लिखते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल ACDO प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCA. ओके, अब रेक्टेंगल के एरिया का क्या फार्मूला है? लेंथ इनटू ब्रेथ. लेंथ हमने मान ली है इसकी ये OA, इट विल बी OA माइनस मल्टीप्लाई बाय OD प्लस 1/2 into base AC into height is BC. Base is this, height is this. ये हमने इसकी लेंथ और ब्रेथ मान ली है. अब जो डिस्टेंस कवर्ड है ऑब्जेक्ट की इन टाइम t में वो क्या है? वो s है. इसका मतलब क्या हुआ? s is equal to this. अब OA की जो वैल्यू है ये है u. OD is t plus half. AC A और C, this is again t, and BC is the change in the velocity, that is v minus u. This is v minus u. ये आ गया. अब now from first equation of motion, फर्स्ट इक्वेशन में v minus u होता है is equal to at के. तो put the value of v minus u from equation number 1. So we got s equals to ut plus half t into at, and s is equal to ut plus half at square. So this is our required solution and the second equation of motion. Now moving towards the third relation, that is position velocity relation. Now moving towards the third equation, और थर्ड इक्वेशन है हमारी पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन. पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन को भी कैलकुलेट करने के लिए हम क्या चीज लेते हैं? डिस्टेंस कवर्ड और ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट. तो डिस्टेंस कवर्ड और ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट दैट इज s. किसके इक्वल हो जाएगा? ये होगा एरिया अंडर AB के अंडर एरिया, यानी इट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABDO. इस ट्रेपेजियम का एरिया. तो अब इस ट्रेपेजियम के एरिया को फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं. एंड एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम का जो फार्मूला है वो है 1/2 sum of parallel sides multiply by the distance between them. तो 1/2 यहाँ पर पैरेलल साइड्स कौन कौन सी हैं? BD और OA.
यानी ओ बी डी और ओ ए, ये तो पैरेलल साइड्स हो गई, मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस बिटवीन देम, इट मे बी एसी और इट मे बी ओडी, ओडी और एसी दोनों इक्वल है, हम एडी भी ले सकते हैं ओसी भी ले सकते हैं। तो अब ये आ जाएगा S इज इक्वल टू हाफ, BD की जरा वैल्यू देखें, D से B तक ये है वेलोसिटी V और O से A तक वेलोसिटी है U ऑन द y एक्सिस, मल्टीप्लाई बाय AC है टाइम t। तो यहां तक हमारा रिलेशन आ गया, बट जो रिलेशन है ये वो है पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। तो पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन में हमें क्या करना है, टाइम एलिमिनेट करना है। तो फ्रॉम इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस at, इस इक्वेशन से u इधर ले आते हैं, v माइनस u इज इक्वल टू at, which may be written as t is equal to v minus u upon a। यानी इस इक्वेशन में इक्वेशन नंबर 1 से t की वैल्यू v minus u upon a को इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो क्या आंसर आएगा, s इज इक्वल टू आ जाएगा हाफ v प्लस u मल्टीप्लाई बाय v माइनस u अपॉन a। तो ये हो जाएगा 1/2 a प्लस बी, a माइनस बी का फार्मूला यहां बन गया v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन a। ओके, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2a और s यहां पर है तो ये हो जाएगा 2as। नाउ दिस relation may also be termed as u square plus 2as. This equation is known as the position velocity relation of the kinetic or the motion. Now coming to the next topic, that is relative velocity. Relative velocity, what do you mean by the relative velocity? Actually relative velocity is the velocity of an object with respect to the another which is also in motion. Yani while we are comparing the velocity of one with respect to any moving object, then the term comes that relative velocity. For example, if we consider that this is an object and this object is suppose moving with velocity v1. Now there is another object, this is suppose moving with velocity v2. v2 is ahead of v1, ये दो ऑब्जेक्ट हैं, इसमें से v2 v1 से आगे चल रहा है। ओके, तो अगर हम v2 की वेलोसिटी को देखते हैं, वेलोसिटी ऑफ v2 विद रिस्पेक्ट टू v1, देन वी आर टॉकिंग अबाउट द टर्म रिलेटिव वेलोसिटी। इसी तरह से अगर हम v1 की वेलोसिटी को देखें विद रिस्पेक्ट टू v2, तो देन अगेन द टर्म रिलेटिव वेलोसिटी विल कम। तो हम क्या कंसीडर करते हैं, हम ये मानते हैं कि लेट एट t इज इक्वल टू 0 द पोजीशन ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज x1 नोट, position of the second object is x2 नोट। सही है, आफ्टर टाइम t टाइम के बाद देयर पोजीशन में बी, t टाइम के बाद पोजीशन क्या हो जाएगी, x1 t हो जाएगी पहले की पोजीशन, दूसरे की x2 t हो जाएगी, एंड इट मस्ट बी इक्वल टू पहला ऑब्जेक्ट x1 नोट पर तो इनिशियली था ही, और t टाइम में कितना कवर करेगा, इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है v1, टाइम है t, तो बाय द सिंपल रिलेशन डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड है v1, टाइम है t, तो v1t विल बी द मूवमेंट ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट। तो ये तो पहले का डिस्प्लेसमेंट हुआ। सिमिलरली सेकंड में भी रिटन एज x2 नॉट प्लस v2t, t टाइम में वो v2t चला जाएगा, ये v1t चला जाएगा। इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2, तो क्या होगा x2t
minus x1t is equal to, here it will be x2 naught plus, or it may be minus x1 naught प्लस v2t माइनस v1t, ये हो गया। अब इसे मैं फर्दर सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखूं तो x2t के साथ में x2 नॉट को इधर अगर ले आता हूं तो ये हो जाएगा हमारा माइनस x2 नॉट, तो ये हो गया नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट 2, सही है। उसके बाद आते हैं हम माइनस ये x1t यहाँ पर है, और x1 नोट को इधर लाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा, बट माइनस अगर बाहर कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा x1 नोट विद नेगेटिव साइन, और यहाँ पर क्या टर्म बची v2 माइनस v1 और t में भी टेकन एज कॉमन। तो क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, ये हुआ डिस्प्लेसमेंट, ये हुआ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। टाइम को इधर ले आए तो डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल टू क्या बच गया v2 माइनस v1। अब डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 विद 1 डिवाइडेड बाय टाइम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी इज इक्वल टू v2 माइनस v1। तो फाइनली इसको हम v2 1 सिंबल से डिनोट कर सकते हैं, इट इज v2 माइनस v1, यानी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। तो ये जो v21 टर्म है, v21 टर्म ही रिलेटिव वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगी। अगर हम इसका रिवर्स चलते हैं, अगर हम इसका रिवर्स मतलब अगर हम बात कर रहे हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, तो इट मे बी रिटन एज v1 माइनस v2, ये है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, ओके। Now we are going to show graphically these situations. यानी कि a relative velocity in position टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ को कहते हैं एक्सटी ग्राफ। पहली सिचुएशन ये मैंने बना दिया एक्सटी, ये हो गया टाइम एक्सिस, ये हो गया पोजीशन एक्सिस, ये हो गया ओरिजिन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एंड वी हैव कंसीडर्ड दैट एट t is equal to 0 the position of one object is x1 node and the position of the another object is x2 node, सही है। और क्या कंसीडर करा कि सपोज पहला ऑब्जेक्ट जो है v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, दूसरा ऑब्जेक्ट v2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, एंड द कंडीशन इज v1 is equal to v2, the velocity of both the objects is same, then we got two parallel lines on xt graph। ये दोनों पैरेलल लाइन किस चीज को रिप्रेजेंट करती हैं कि जो पहले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है v1, दूसरे की v2 है, और v1 v2 के इक्वल है। तो यानी कि इफ बोथ द ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड इन मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, देन द सेपरेशन बिटवीन बोथ विल बी फिक्स्ड, मतलब गैप बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स विल नाइदर इंक्रीज नॉर डिक्रीज। जैसे अगर मैंने यहाँ पर सपोज ये दो ऑब्जेक्ट को कंसीडर कर लिया, ये जो है v1 v2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और ये सपोज दिस इज v1 and this one is suppose v2, ठीक है, okay। if both are moving in the same direction तो और with the same velocity, तो इनके बीच का जो गैप होगा it will remain same, it will remain fixed, and that gap is here represented by the parallel lines, okay। now coming to the second point, सेकेंड पॉइंट में फिर से मैं ये एक्सटी ग्राफ यहाँ पर रिप्रेजेंट करता हूँ। ये ओरिजिन है, ये टाइम एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और इनिशियल पोजीशन ऑब्जेक्ट की मैंने मान ली है ये x1 नोट जो कि पहले से ही थी, t is equal to 0 और x2 नोट जो सेकेंड पोजीशन। बट दिस टाइम कंसीडर v2 इज ग्रेटर देन v1। अब v2 आगे वाला ऑब्जेक्ट है, v1 से अगर ग्रेटर वेलोसिटी है तो गैप गो ऑन इंक्रीजिंग, यानी v1 का अगर ग्राफ ये वाला है
फर्स्ट ऑब्जेक्ट का ग्राफ अगर ये है तो सेकंड ऑब्जेक्ट का ग्राफ कैसा था इनिशियली तो था ये पैरेलल लाइन क्योंकि गैप दोनों का सेम था, बट इट गो ऑन इंक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग ग्राफ बन जाएगा इंस्टेड ऑफ दिस, मतलब गैप गो ऑन इंक्रीजिंग। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी ऑफ द दिस ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन द फर्स्ट वन, फर्स्ट से ज्यादा है तो गैप बढ़ता चला जाएगा। अब एक तीसरी कंडीशन और ले लेते हैं। इन द थर्ड केस थर्ड केस में हमने यही ग्राफ ले लिया, एक पोजीशन टाइम सेम है, बट यहां पर क्या है, v1 इज ग्रेटर देन v2 है, यानी जो पीछे ऑब्जेक्ट चल रहा है उसकी वेलोसिटी क्या है, ज्यादा एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट विच इज मूविंग इन द फॉरवर्ड। तो क्या होगा, v2 इज मूविंग इन द सेम वे विद वेलोसिटी v2, बट v1 इज अप्रोचिंग टू v2। v1 क्या करेगा, v1 की वेलोसिटी अगर ज्यादा है तो इसको अप्रोच करेगा, और अप्रोच करने के बाद क्या करेगा, अप्रोच करने के बाद में इसको ओवरटेक करेगा, यहां पर ओवरटेक, एंड ओवरटेक के बाद क्या होगा, द गैप बिटवीन देम अगेन गो ऑन इंक्रीजिंग, इनके बीच का जो गैप है वो बढ़ता चला जाएगा। तो ऐसा ही होगा जब कोई पीछे से आने वाली कार की स्पीड अगर आगे जाने वाली कार से ज्यादा है तो ये कार पहले तो इसे अप्रोच करेगी, फिर ओवरटेक करेगी, ओवरटेक करने के बाद में ये आगे निकल जाएगी, यानी गैप बढ़ता जाएगा। तो वही हमने दिखाया कि ये कार सीधी जा रही है, फिर दूसरी कार ने इसको ओवरटेक किया, अप्रोच किया, पहले गैप घटा, फिर ओवरटेक किया और फिर उसका गैप बढ़ता चला गया। तो दिस इज अवर third condition when v1 is greater than v2. In this way our relative velocity is over.